and the Indian Military Academy. He was commissioned into the Corps of Signals and he has done his MTech in IT and telecommunication from DAVV Indore. He has served over varied terrains and appointments in the counter-insurgency operations in Jammu and Kashmir, Northeast and Central India. He was an instructor at the Military College of Telecommunication Engineering, MO, and represented Indian Army as a staff officer in UN missions in Eritrea, Ethiopia. Post-retirement, he has worked with Globacom, a telecommunication company in Nigeria. He is currently pursuing his passion of training young minds for the armed forces through his venture C3 Services based at Chandigarh. He is also working with Maharaja Ranjit Singh AFPI Mohali, which is the leading institution of the region for the officers मैम training आपकी आवाज़ academies नहीं आ रही like है। NDA. Am I audible? नो मैम। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Ma'am, you are audible. Yes, ma'am. Students, please keep your mic on mute because otherwise disturbance is created in the event. मैम आपकी Excuse आवाज़ me नहीं आ for रही this है। disturbance. So I was telling you that Mr. Chanpreet Singh has worked post-retirement. He has worked with Globacom, a telecommunication company in Nigeria. He is currently pursuing his passion of training young minds through for the armed forces through his venture C3 Services based at Chandigarh. He is also working with Maharaja Ranjit Singh AFPI Mohali, which is the leading institute of the region for the officer training academies like NDA, OTA, IMA, and Naval Academy. He is also an established life coach and mentor. So, as we all can see, he has a very rich profile, and that will certainly be useful for all of you as you will be learning through his experience. We are indeed privileged to have you with us for today's extension lecture, sir. Now, I would like to tell you about our college in brief. Our college is a multi-faculty postgraduate college with NAC accreditation grade A. We got a CGPA of 3.10 from NAC, which is highest in district Yamunanagar. Career 360 magazine declared our college as best women college in Haryana in its survey. We have 14 postgraduate courses, honors in 9 subjects at undergraduate level, and 40 undergraduate courses. Presently, we have more than 2,300 girls on rolls of the college. Now, without taking any more time, I once again welcome you, sir, and I request you to start with your session. Over to you, Chanpreet Singh ji. Okay, thank you, Dr. Aarti. Thanks a lot for the wonderful words which you said. And I'm really grateful that you've given me this opportunity. I would like to extend my heartfelt gratitude to the management of the college, the principal ma'am, and Dr. Gandhi. Thanks a lot for this opportunity. And as Dr. Aarti brought out, it's been my endeavor since the time I quit the uniform. I will not call myself a retired person, but I have re-attired myself in establishing myself within the region as well as pan India to mentor young minds for the armed forces. So it's a double-edged weapon which I am carrying, because firstly it gives me a fulfillment. It's my way of giving back to the organization which has given me so much over the years. If I am able to field good talent to the organization, obviously I'll have the sense of fulfillment. And secondly, it will be beneficial for the organization if good talent finally goes on to become officers and holds the reins of the officer community. Obviously, it will be a win-win situation for both sides. So I am continuing in my endeavor for the last 8 odd years in mentoring young minds, and it's been a wonderful journey because in interaction with the next generation, you feel that yes, you are evolving into a better person. You are in touch with what is required in the current environment and what is the current level of expectation
of the generation. So when you are into all these things, obviously it means that there is a lot of responsibility which comes onto your shoulders. That is why I say it is a double-edged weapon, because God forbid if through me somebody who is actually not fit enough to hold on the reins of being an officer in the armed forces gets into the forces, or vice versa, in case the organization is able to recruit somebody who is actually not inclined towards that. So neither the person gets satisfaction, job satisfaction, nor will the organization derive the benefits. So that's why I say it's a double-edged weapon. And I fully understand my responsibility, and that is precisely the reason why I have been constantly going on to colleges, to schools, and my mentoring does not only restrict into SSB sphere. It has gone much beyond that. And because I firmly believe कि SSB के लिए किसी को कोच नहीं किया जा सकता. You cannot coach anybody. किसी को ट्रेन नहीं किया जा सकता. So it is a career, yes. लेकिन इस करियर के लिए आपको समझना ये जरूरी है कि it is a way of life. Because it is a way of life, या तो आप इसके लिए बने हो या नहीं बने. तो इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है कि नहीं मैं इसमें रिकमेंड नहीं हुआ या मैं इसमें रिकमेंड नहीं हुई तो इसमें मेरे अंदर कुछ चीज लैकिंग है. It's not like that. So armed forces is different from other career options. So if Dr. Aarti can give me this display thing, so I want to share my presentation and I can, if the rights are available, I can go. Yes, sir. Yes, sir. Rights are available. You may Okay. share your screen. Thank you so much. Thanks a lot. I hope the presentation is visible. Is the presentation visible? No, sir. No, sir. Just a sec. No, sir. No, sir. Okay, let me see. Students, you please keep yourself on mute. I think the rights are not there. Let me see again. And there's some problem, ma'am. वो rights are not there with me. Sharing वाली rights आ नहीं रही हैं. I'm trying to share the screen. It's not there. Are you able to see my screen sharing? Yeah, I'm able to see your screen share. Sir, there is no problem with the rights. If I can share, you can also share. But in case if there is problem, you can mail your PPT to us and we will share the I'll screen do from that. I our think side. that will be better. Hina, what's your mail ID, beta? Please write in the chat box. Hina, please write your mail ID in the chat box. Okay, ma'am, are you able to see it now? Yes, sir. Now we are able to see it. Okay, so as I told you, I have started my venture by the name of Colonel's Counseling and Consultancy Services, and it is broadly aligned to mold the young minds. Firstly, give you a very clear picture what armed forces is all about, since I very strongly feel
कि ये सिर्फ एक करियर ऑप्शन नहीं है, ये आपके लिए एक कमाई का ही जरिया नहीं है, बट ये एक जीने का तरीका है. सो सिंस इट्स अ वे ऑफ लाइफ, यू नीड टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली बिफोर यू टेक द फर्स्ट स्टेप कि आप इसके लिए बने हो कि नहीं बने हो. सो दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी. अभी स्टडी और करियर ऑप्शंस हम जब से स्कूल से निकले हैं, वी हैव बीन बम्बार्डेड विद इट. तो जो पहला स्टेप हमने अपनी लाइफ में लिया था वो था कि भाई करेक्ट सब्जेक्ट्स जो +1 +2 में हम ऑप्ट करते हैं, वो पहले डिसाइड करते हैं कि कौन कौन से करियर ऑप्शन हमारे लिए लाइफ में खुलेंगे. सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप आफ्टर 10th. कोई PCM लेता है, कोई PCB लेता है, कुछ कॉमर्स लेते हैं बच्चे, कुछ ह्यूमैनिटीज में जाते हैं. सो ऑल करियर्स are dependent on the kind of subjects you opt after your 10th class, that is in your +1 +2. and believe me, हम सब ने फील किया है कि जब हम +1 +2 में जाते हैं तो एक 180 डिग्री फेस शिफ्ट आता है. इट इज नॉट एक्चुअली अ कंटिन्यूएशन ऑफ व्हाट यू स्टडी टिल 10th. यस, 10वीं तक जो हमारा बेस बना है दैट इज ऑब्वियसली देयर, लेकिन उसके बाद जो +1 +2 का करिकुलम है वो एक 180 डिग्री फेस शिफ्ट आता है, जिस वजह से अगर हमारी ये जो चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स हैं वो ठीक नहीं रहती तो 1 ईयर डाउन द लाइन, 6 महीने हमें उसके बाद पता चलता है कि यार ये तो गलत हमने सब्जेक्ट्स ऑप्ट कर लिए, इसमें बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा है या मजा नहीं आ रहा है पढ़ने में, आई एम अनएबल टू स्कोर वेल. सो कई बार देखा गया है अराउंड 60 to 70% बच्चे जो हैं अपने 11th क्लास के जो हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं उसमें फील करते हैं कि यार बहुत मुश्किल है कोप करना विद द स्ट्रेस ऑफ स्टडीज. लेकिन उस टाइम एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है, पीयर प्रेशर होता है, तो उस वजह से कई चीजें हमारे दिमाग में उस टाइम घर करना शुरू करती हैं. तो जो हमारी ड्रीम्स हैं, जो 10वीं तक हमने ड्रीम किया था, ड्रीम करियर, हम ये करेंगे वो करेंगे, वो सब चीजें इन एक्सटर्नल पुल्स, प्रेशर्स और इन्फ्लुएंसेस की वजह से चेंज होना शुरू कर देती हैं या हम उसको रीअलाइन करना शुरू कर देते हैं. लेकिन उसको कोप करना, उस हिसाब से उस लेवल पे परफॉर्म करना कई बार हमारे लिए पॉसिबल होता है और कई बार हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज वी आर अनेबल टू सी द एंड रिजल्ट. जो एंड रिजल्ट हमने ड्रीम किया था, जो एंड रिजल्ट हमारे हमेशा मन में रहा है, वो जब हमें अचीव नहीं हो पाता, सो एंड रिजल्ट इज दैट वी टेंड टू बी कंफ्यूज्ड. सो वी always are in a state, you know, where we are in a confused state of mind. अभी अब क्या करें, अब ये सब्जेक्ट ले लिए, माँ बाप ने बोल दिया इस कॉलेज में चले गए, स्कूल में चले गए, लेकिन मजा नहीं आ रहा, अब उनको बोलेंगे तो क्या सोचेंगे वो. तो 100 चीजें, बहुत चीजें बच्चे के दिमाग में घर करना शुरू कर देती हैं. एंड देन what you want to become in life, I can generally segregate into 4 categories. First is you may be self-employed, अपना आप कुछ करेंगे. Then you might be employed by somebody else. आप एक गवर्नमेंट जॉब, किसी सिविल जॉब, कहीं पे भी जा सकते हैं. You may be an entrepreneur. You may be doing something on your own, or an investor. You are investing into somebody's business, और वहां से आप अपनी रिटर्न्स लेना शुरू करते हैं. So either of these choices guide your higher study options after school. जब +1 +2 का हम करिकुलम खत्म करते हैं तो ये ब्रॉड 4 चॉइसेस होती हैं जो हमारी आगे की जो करियर ऑप्शंस हैं उनको गाइड करती हैं. सो इफ यू चूज टू बी एम्प्लॉयड, वेयर ऑल कैन यू बी एम्प्लॉयड? सो ऑप्शंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर, यू मे बी अ गवर्नमेंट जॉब, you may be in a public sector, you may be in a private sector, or you may opt for certain foreign jobs in multinational companies. अगर आप इन चीजों को देखें कि जो एम्प्लॉयमेंट की ऑप्शंस हैं उनमें क्या क्या चीजें आती हैं, आप सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं, बैंकर, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, एजुकेशनिस्ट, साइंटिस्ट, या आप सीए बन सकते हैं. और इसके अलावा भी कई ऑप्शंस हैं विच आर अवेलेबल टू यू, विच आर राइट नाउ अवेलेबल, बट देन वी मे नॉट हैव अ वेरी क्लियर आइडिया कि ये हमें क्या देती हैं, क्योंकि ये एक टेंजेंट पे होते हैं जो आज तक हमने ड्रीम किया है. तो एंड रिजल्ट क्या है कि बच्चा कोई ऐसा फील्ड ऑप्ट कर लेता है जो उसको उसके दोस्तों ने, उसकी सहेलियों ने बताया है, उसके माँ बाप ने बताया है, या घर में कोई ऑलरेडी सिविल सर्विसेज का या डॉक्टर फील्ड का या इंजीनियर फील्ड का कोई सीनियर है, हमारे एल्डर है, वो हमें गाइड कर देता है कि नहीं, वो हो सकता है हमारे इंटरेस्ट लेवल को मैच करे, हो सकता है ना मैच करे. तो अगर तो वो हमारे इंटरेस्ट लेवल को मैच करता है, देन वी टेक लाइक फिश टू वाटर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती एंड वी आर एबल टू एक्सेल. बट गॉड फॉरबिड कोई ऐसी चीज हो जाए कि हमें करियर ऑप्शन ऐसा ऑप्ट करें जो हमारे इंटरेस्ट, हमारे एप्टीट्यूड के हिसाब से वेल अलाइंड नहीं है. तो उस केस में क्या होता है
कि हम अपने इंटेलेक्ट की वजह से, हम अपनी बुद्धि की वजह से उसको क्रैक तो कर लेते हैं, एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर लिया, वी आर एबल टू गो थ्रू द एंट्रेंस एग्जाम, इंटरव्यूज क्लियर कर लिया, लेकिन जो एंड में हम काम कर रहे हैं, जो हमारी रोजी रोटी का जरिया बन रहा है, क्योंकि वो हमने अपने जीवन के ऑलमोस्ट 50% कार्यकाल में करना ही करना है, तो वो हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं होता है। जब वो हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं है, वी आर नेवर एबल टू डिराइव द जॉब सेटिस्फैक्शन, वी आर नेवर एबल टू गिव आवर 100% टू द ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन भी हमारे से 100% नहीं ले पाती, क्योंकि हमारा मन नहीं है। मन मार के हम पैसे के लिए या अपनी जॉब करने के लिए काम कर रहे हैं। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो उसके अंदर हम अपने आप को प्रोफेशनली इवॉल्व नहीं कर पाते इनटू अ बेटर ह्यूमन बीइंग, प्लस वी आर नॉट एबल टू बी अ फिटिंग एम्प्लॉय ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन इन विच वी आर वर्किंग। सो कॉन्स्टेंटली हमारा ग्राफ जो है फुलफिलमेंट का भी नीचे जा रहा है, पर्सनल एवोल्यूशन का भी नीचे जा रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग डाउन। एट द एंड ऑफ द डे हम ये लगता है थक गए हैं। वेयर एज अगर हम, जो मेरा ट्रेनी है, जब मैं मेंटरिंग करता हूँ तो आई ऑलवेज गाइड यू कि भाई यू डू समथिंग ऑफ योर ओन चॉइस सो दैट यू आर एबल टू फील एनरिच्ड एवरी डे, एवरी मोमेंट। जो आप अपनी मर्जी का कर रहे हो, यू विल नेवर फील टायर्ड। सो out of these options, one of the options is that you can choose to be an officer in the Indian Armed Forces. अब इतने सारे करियर ऑप्शंस हैं, तो आपके मन में ये चीज आएगी कि भाई इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को क्यों ज्वाइन किया जाए। तो इसके कई रीजंस हैं। अब गर्ल्स के लिए ऑब्वियसली डिफेंस फोर्सेस आर गिविंग यू इमेंस ऑप्शंस। इट इज अ वेरी वेरी अट्रैक्टिव ऑप्शन बिकॉज इट इज अ प्योरली मेरिट बेस्ड सिलेक्शन। देयर आर मल्टीपल एंट्री स्कीम्स। आप इंजीनियर्स, कंप्यूटर्स फील्ड, कहीं से भी आप इसमें जा सकते हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मिलती है आपको, आप उसके अंदर ऑन द जॉब आप स्पेशलाइजेशन हासिल कर सकते हैं, जॉब सिक्योरिटी है, फैमिली बेनिफिट्स हैं। द काइंड ऑफ बेनिफिट्स विच यू गेट बाय बीइंग एन ऑफिसर इन द आर्म्ड फोर्सेस आर अनमैच्ड। सो आपका जो कैरी होम सैलरी, इट इज नॉट ओनली द कैरी होम सैलरी, इट इज एन अमेलगमेशन ऑफ एवरीथिंग। आपका एक सोशल स्टेटस बन रहा है, आपको कई चीजें ऐसी मिल रही हैं, मेस के फैसिलिटीज मिल रही हैं, राशन फैसिलिटीज मिल रही हैं, घूमने की फैसिलिटीज मिल रही हैं, आपकी फैमिली को कई प्रिविलेजेस मिलते हैं, क्लब्स में जाने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, कई गेम्स खेलने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, एडवेंचर एक्टिविटीज की। दे आर इमेंस बेनिफिट्स। So you need to understand that it is not about only money. It is a way of life. Your way of life changes. जिस तरह से आप अपनी जिंदगी आज तक जी रहे हैं, in case you are not from an armed forces background, it is going to undergo a complete change. मैं totally civil background से था when I joined NDA in 1992. After that, my life has been totally changed. The way you behave, the way you interact, the way you carry out your daily routine jobs, it has changed totally. So if I had not liked it, तो मैं हमेशा बंधा हुआ महसूस करता। और इसमें एक बार आपने स्टेप ले लिया, क्योंकि ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें कोई बैक ट्रैकिंग नहीं है, आप वापस नहीं आ सकते। So that has to be very clearly understood कि armed forces is an option which you have to exercise only and only if you are cut out for it. So these are just some of the facilities which I have listed out for you. Which you may undergo on a day-to-day basis. So you need to understand what you are going in for before actually taking the plunge. Now, role of the armed forces, as you know, everybody knows that it's to ensure the national and territorial integrity against external and internal threat. Then often आपने देखा होगा आर्मी और the armed forces are the last bastion. कोई बोरवेल में बच्चा गिर गया, जब सारी चीजें फेल हो गई, आर्मी बुला लो। बॉम्बे में पुल गिर गया, जब सब चीज फेल हो गई, आर्मी को बुला लो, पुल खड़ा कर देगी। In terms of national disasters, natural calamities, at any given time, army is called on to assist the civil administration. So it is the last bastion. You are one amongst those elite people in the entire country जिस पे पूरा देश अपना भरोसा रखता है कि भाई आर्मी आ गई है तो सब ठीक हो जाएगा। So please understand that what you are getting into. So this is the command and control structure of the Indian Armed Forces. You must understand, and but what you need to see in this is your slides are not changing. Slides are not changing. Yes, I'm changing the slide. I don't know. Just a sec. Yeah, now it has changed. Is it visible now? Yes, sir. Is the transition yes, sir, now it is visible. Okay, great.
Okay, so broad setup in the armed forces. Let's see what are the broad elements as we are only addressing girl students. So you need to understand where all you fit in the broad structure. So now this is the rank structure of the armed forces, Army, Navy and Air Force. You can see you start with a lieutenant in the Army, a sub-lieutenant in the Navy and a flying officer in the Air Force. And thereafter you can go up to the top ranks where you are heading the organization. Now, which are the branches? Let's see. In the Army, you have the Armored Corps, Artillery, Engineers, Signals, Infantry, and Mechanized Infantry. Out of this, ladies are permitted to join Engineers, the Corps of Signals. These are the two arms which you can join. You cannot join the other arms and services because, you know, these right now, though Army in the coming days, it might open it up. But right now for girls, the entry is open as officers into the Corps of Engineers and Corps of Signals, because these are two technical arms wherein the girls can have satisfaction of doing something fruitful. Then we go into the services. Services के अंदर Army Service Corps, Army Ordnance Corps, Electrical and Mechanical Engineers, Army Medical Corps, RVC, Military Farms, Judge Advocate General Branch, Corps of Military Police, Army Education. So all services are open for lady officers. So only in the arms there is a restriction, wherein still the Army is still not very much inclined towards having lady officers in actual fighting arms like Armored Corps, Artillery or Infantry. But otherwise it has opened up for other branches. Now for Navy, it is the executive branch, logistics, engineering, electrical and education branch. Please understand, except for executive branch, the ladies officers are permitted to join any other branch. So in Navy, you are permitted to join any of these branches, like and in fact you can go into the ATC also. Okay, there is something known as air traffic control. So Navy has got its own aircraft. So wherever ATC exists, the ladies are expected to join that also. Now in the Air Force, there is a flying branch. Recently, about 2 years back, the Air Force has opened up all its branches for lady officers. So Air Force के लिए आप किसी भी branch में जाने के लिए सक्षम हैं. All ladies, provided you are fit and you have the required educational qualification, you can go into either the flying branch, the technical branch, or into the ground duty branches, which accounts for the administration, accounts, logistics, education, transport, and Met department. So all branches are actually giving you fulfillment in your respective fields. So if you are into this field, you are already a graduate, you are doing your post graduations, please hone your skill set, check out with the required qualifications which are required for getting into each of these branches, and thereafter you can move in. And now the next question, जो pertinent question आता है, वो बच्चे generally पूछते हैं, sir, is life in the armed forces risky? So I will take you in a very deliberate manner. WHO के एक सर्वे के हिसाब से रोड ट्रैफिक इंजरीज रफली अपने आप मान के चलिए कि 12 लाख men, women and children are all over the world are injured throughout every year. Okay, और इंडिया उसमें से 10% रोड एक्सीडेंट फैटेलिटीज जो हमारे कंट्री में होती हैं. सो नाउ दीज स्टैटिस्टिक्स मे सीम टू यू के बहुत ज्यादा हैं, बट प्लीज अंडरस्टैंड कि एनुअल डेथ रेट इन इंडिया इन द रोड एक्सीडेंट्स अलोन इज 10 times more than the total soldiers killed in all the wars India has fought. आज तक हमने भारत की फौज ने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी हैं उसमें से कैजुअलिटी रेट्स अगर आप उठाएंगे तो एनुअल डेथ रेट इन इंडिया सिर्फ रोड एक्सीडेंट्स का 10 गुना है उससे, एनुअल डेथ रेट. सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट द रिस्क इज नॉट ओनली ऑफ लाइफ. लाइफ को एक इटर्नल चीज मान के नहीं चलना चाहिए. इट इज बेटर टू लिव लाइक अ लायन इवन इफ यू लिव फॉर 4 days देन लिविंग लाइक अ शीप फॉर 100 years सेंट बाय टीपू सुल्तान. सो प्लीज अंडरस्टैंड. So death ने तो हमारे लाइफ में आना ही आना है. That is the ultimate truth. But how you are able to live your life, how you fruitfully you can contribute to the society, to your nation. So that is one of the best options which are available. That how can a man die better than facing the fearful odds for the ashes of his fathers and the temples of his gods. So that is a provision which is only available right now in the Indian Armed Forces. It is one of the most organizations which give you a very good
correlation between being patriotic and doing something which fulfills your desire to do something for your nation. So I'll just cite something which is engraved at the War Memorial at Kohima. It is of Assam Rifles, and you can see that this is something which you must have read at different places. Generally, whenever somebody is martyred, so this is told: when you go home, tell them of us and say that for your tomorrow we gave our today. So this is in memory of the Commonwealth forces who served in Burma 1941 to 45. So this is something, you know, which actually brings out what is the essence of joining the armed forces. And then the motto of officers, that is the next which comes, which is enshrined in the Chetwood building at IMA Dehradun. The safety, honor and welfare of your country comes first, always and every time. The honor, welfare and comfort of the men you command comes next. Your own ease, comfort and safety comes last, always and every time. So this is the motto which we stand for once you start wearing the officer ranks. And believe me, every officer whose worth is salt stands by this motto till the last moment he wears the uniform. So that is the sanctity which we give to this. So armed forces are meant for the adventurous, the daring, the sports loving, the confident, considerate, cooperative, responsible, knowledgeable, truthful, determined, lively and selfless people. Please understand, these are off the cuff things which I have felt once I wore the uniform as an officer. So anybody who fits into any of these brackets will find job satisfaction, will find job fulfillment. आपके अंदर वो चीज, अगर इनमें से कोई भी चीज जो लिस्ट की है, कोई चीज है, तो आप कहीं ना कहीं अपना एक अलग नजरिया फौज में बना लोगे. And you will be able to find job satisfaction. जब job satisfaction आएगी, obviously you will be able to do something fruitful for the organization and for your own country. But we have to take care. The armed forces are not meant for the bookworms, weak-hearted, office or chair-loving, self-centered, cunning, liars and know-alls. Now these are qualities or things or traits which perhaps maybe you are seeing day in day out. हम कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में ये चीजें देखते हैं. तो आपने देखा होगा कि जो भी किताबों में घुसा रहता है, छोटी छोटी चीज से घबरा जाता है, एक इनक्लोज्ड एनवायरनमेंट में भाई बढ़िया सा ऑफिस, एसी चेयर, कुर्सी, सब कुछ मिला है, और एक सेल्फ सेंटर्ड वे में काम करने का जिसका तरीका हो, छोटी छोटी बात पे झूठ बोलना, कवर अप करना और अपने आप को दिखाना कि मुझे सब पता है, उन लोगों के लिए ये फोर्स नहीं बनी है. And God forbid if they get into the armed forces, they will always be a misfit. Now these are the three websites for all three, that is Army, Navy, Air Force, which you must note down. Please note it down, क्योंकि आजकल जो इंटरनेट का जमाना है, इसके अंदर कई चीजें हैं जो कि अफवाह के रूप में फैलती हैं. You are actually not getting the correct information, the authentic information. So whenever you want any authentic information on any particular entry, on any result, on any particular eligibility condition, please go to these authentic websites only, because these are the websites which can give you the correct picture. Something which is posted by the Army, Navy or the Air Force headquarters is available on this, and you will be getting a very clear reply. So don't go into any rumor mongering and start proliferating something which is not true. So all you need to ask yourself is, if you are any of these and you have it in you, then this cap is going to fit you. Okay, so this is what I wanted to tell you about the general this thing. Now we will discuss a little bit about the types of commission, and I'll tell you what kinds of commissions are available for the girls specifically. Now firstly, we must understand there are two types of commission as officers into the Indian Armed Forces. One is permanent commission, one is short service commission. Permanent commission का मतलब है, the commission is given by the President of India, and once it is given, it resides with you permanently. You are a permanent commissioned officer. A short service officer is given a bond of engagement. आप पहले 10 साल के लिए एक short service commission, though the ranks are same, you are working as a short service commission officer. Once 10 years is completed, based on your performance, and अगर आप चाहते हैं तो आपको 4 साल का और extension दिया जाता है.
उसके बाद 14 साल की सर्विस कंप्लीट होने के बाद यू आर गिवन एन ऑप्शन इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर परमानेंट कमीशन, then based on your profile, based on your ACRs, a board sits and finds out whether you are fit enough to be given permanent commission. और इसमें भी जो शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है, इसके अंदर around 80% of the people who apply get permanent commission. Now entries are after +2 also. Now after +2 unfortunately girls के लिए जो ऑफिसर एंट्री है वो सिर्फ MNS है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज. सो वो इसमें मैंने मेंशन नहीं की थी बिकॉज आई डोंट थिंक एनीबडी हैज गॉट बायोलॉजी एज अ बैकग्राउंड आफ्टर 10+2. सो और वैसे भी क्योंकि आपका पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है, सो प्रॉब्ली यू मे नॉट बी डीलिंग एट दैट लेवल. बट इन एनी केस अगर कोई लड़की है जो इच्छुक है, उसके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इन 10+2 है, तो शी इज गॉट एन ऑप्शन टू अपीयर फॉर अ रिटन एग्जाम आफ्टर 10+2. The last cutoff which we had was around, I think, 85% in the last year, 85% in PCB. If you've got in 10+2 and you are clear in the MNS examination, then आपको सरकारी खर्चे पे there are 6 colleges all over India which conduct BSc nursing courses. So BSc nursing की डिग्री आपको मिलती है, 4 साल का कोर्स आप करते हैं and there is no expenditure on your training at all. It is just like NDA. Boys go to NDA and girls with a biology background, they will be, after clearing the MNS exam and the interview, they go for BSc nursing course. Now nursing is something, which is only exclusive to ladies. Army mein military nursing services is only meant for ladies. So it is a purely female oriented arm wherein the nursing officers are posted to the military hospitals, base hospitals and command hospitals all over, and they wear the same uniform. Okay, so you can further get back to me in case you want any idea or any further clarification ke MNS entry ke bare mein, you can ask me. So once every year in the month of March generally the exam is held. This year because of delay due to COVID abhi tak exam nahi hua hai, so any day it will be held. But आपको ये ध्यान +2 के अंदर ही रखना है कि पहली बात तो 85% से ऊपर पीसीबी में लेने ही लेने हैं मार्क्स, एंड देन यू डोंट रिक्वायर टू डू एनी क्रैश कोर्स विद इन +2. इफ यू हैव अ प्रॉपर गाइड अवेलेबल विद यू, दैट पर्सन कैन टेक यू थ्रू नॉर्मल प्रोसेस वेयर इन आपको जनरल अवेयरनेस उन सब चीजों के बारे में बताया जाता है जो आपके रिटन एग्जाम में आएंगी, एंड देयर आफ्टर इंटरव्यू की तैयारी भी अलग से करवाई जाती है. सो देयर आर 6 कॉलेजेस and roughly you can say around 25 to 30 girls per college. So roughly around 200 odd seats are there all over India wherein the girls are taken in, and after 4 years you are commissioned as an officer into the military nursing services. Rank structure is exactly the same as normal Indian Army. So you will get commissioned as a lieutenant and you can go up to a general officer. What pertains to you, you people may be eligible for going in for after graduation or post graduation. Now please pardon the spellings of graduation, I think I missed out on that. So post graduation में आप अगर science graduate हैं, so you can go in to the short service commission. girls के लिए सिर्फ short service commission अभी खुला है, तो आप OTA चेन्नई के थ्रू आर्मी में आ सकते हैं, इंडियन नेवल अकेडमी एजिमाला के थ्रू नेवी में जा सकते हैं, और एयरफोर्स अकेडमी डुंडीगल के थ्रू एयरफोर्स में जा सकते हैं. जो टेक्निकल पोस्ट्स हैं, जो टेक्निकल वैकेंसीज हैं, उनके लिए आपको यूपीएससी रिटन एग्जाम में नहीं बैठना है. लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी में जाना चाहते हैं, डिस्पाइट यू हैविंग अ टेक्निकल डिग्री, देन यू हैव टू सिट थ्रू अ यूपीएससी एंट्रेंस एग्जाम. प्लस द गर्ल्स हु आर हैविंग एनसीसी सी सर्टिफिकेट, एनसीसी सी सर्टिफिकेट विद मिनिमम ब्रावो ग्रेडिंग, आपकी ब्रावो ग्रेडिंग होनी चाहिए, और एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं जो, उनको भी किसी यूपीएससी एग्जाम में बैठने की जरूरत नहीं है. देयर इज अ डायरेक्ट एंट्री एवरी ईयर ट्वाइस, 2 बार हर साल एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स को डायरेक्ट एसएसबी के लिए बुलाया जाता है, एंड इफ फाउंड फिट यू आर सेंट टू द ओटीए. Again, the training is for around 50 weeks, after which you are commissioned as an officer into the services which I just brought out a little while back. Then there is a law stream. जो law किए हुए हैं बच्चे, उनको भी direct
लॉ की डिग्री के बेस पे दे आर डायरेक्टली कॉल्ड ओवर टू एसएसपीज, उनको भी कोई रिटन एग्जाम में बैठने की जरूरत नहीं है। Now, what do we at C3 Services do? So my methodology is very unique. I am following it. I am not running any, class में बच्चे बिठा के आप सीधी करवाओ. So it is a counseling session which is the start point. So I need to start off with a counseling session wherein I bring out कि आपके अंदर वो aptitude wise all those things are available or no. So once I am convinced कि yes, everything is in the right place and you will be a person who will be able to derive satisfaction from wearing the uniform, then we take the next step of training you. Ab training is given for SSB as well as for written exams and it is done through a mentoring process. अब आपके कॉलेज में अगर कॉलेज अप्रोच करता है, कॉलेज फील्ड्स अ बैच कि ओके हमारे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर स्टूडेंट्स और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए हम बैच फील्ड करना चाहते हैं और एनसीसी स्टूडेंट्स के लिए बैच फील्ड करना चाहते हैं, तो हमारे पास सारे मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं. वी कैन गो फॉर एन एनुअल मॉड्यूल जिसमें once every month or perhaps twice every month we have an online session or I come over to the colleges and conduct that session and thereafter you are gradually molded. आपको हर एक चीज के बारे में जानकारी दी जाती है कि रिटन एग्जाम में इन चीजों का ध्यान रखना है. फिजिकल स्ट्रेंथ आपको बिल्डअप करना, अगर 15 दिन का आप क्रैश कोर्स करोगे, उस क्रैश कोर्स के अंदर इट इज बट नेचुरल आपकी फिजिकल एबिलिटीज हम उस लेवल तक नहीं पॉलिश कर पाएंगे कि आप अपने आप को बेस्ट मान सको वहां पे. बट इफ यू अंडरगो द एंटायर मॉड्यूल फॉर एन ईयर, तो विद इन दैट ईयर योर फिजिकल एबिलिटीज आर टोन टू अ लेवल दैट यू आर एबल टू डू वेल एट द एसएसबी. जो फिजिकल टास्क हैं उसमें आप अच्छा कर पाते हैं, प्लस जो रिटन पार्ट है वो आपको ग्रेजुअली बताया जाता है. जब आप अपने पढ़ाई के करिकुलम के साथ अपने रिटन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वो एक साथ चलती है चीज, उसमें आपको अनड्यू प्रेशर किसी चीज का नहीं लगता है. प्लस योर every doubt is being clarified side by side, so there is no pressure as such कि एकदम से नहीं 15 दिन के अंदर ये कोर्स करना है. वो जो कोचिंग एकेडमीज करवाती हैं वो हम काम नहीं करते हैं. So in case the college fields a batch, then I have no issues. I have a minimum strength which should be available and then I have no problems in coming to the college and conducting the sessions. But अगर इंडिविजुअल बच्चे आते हैं तो डेफिनेटली वन ऑन वन मेंटरिंग जो है वो हमारी इंडिविजुअली चलती है. So my address is available with Dr. Aarti. Anybody interested can approach, or in case it is through the college, I am most interested in engaging myself with any particular institute who is interested in fielding students for the officer induction. I have finished with it. Anybody who's got any queries, I think now Dr. Aarti may open the session for any queries. Students, if you have any question related to whatever sir has told you, you can write in the chat box or you can unmute yourself and ask your questions yourself also. We have 50 NCC students with us. So in case NCC students they wish to ask any question, they can ask. Jai Hind, sir. Anji, good afternoon. Shubhangi. Sir, yes, sir. Sir, I wanna ask that if there are NCC entry and around 1 lakh students will appear for this, लेकिन जो सिलेक्ट होते हैं वो सिर्फ 5 स्टूडेंट्स के लिए है बेसिकली एनसीसी, और उसके अंदर ग्रेडिंग भी बच्चों की ए ग्रेड है और कुछ आरडी होल्डर्स भी होते हैं. सो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि जिनका बी ग्रेड हो और कौन से बेसिस पे वो अपने एनसीसी कैडेट्स को आगे एसएसबी में बुलाते हैं? देखो बेटा, बिकॉज 5 वैकेंसीज है. तो पहली चीज तो अपने दिमाग में ये चीज क्लियर कर लो, आपको कितनी वैकेंसी चाहिए अंदर जाने के लिए? सर ओनली 1. सो अगर एक भी वैकेंसी है, व्हाई शुड यू वरी के 5 वैकेंसी है? 5 मतलब आपको 5 बार चांस दिया जा रहा है फेल होने का. अगर आप 4 बंदों से नीचे आ गए तब भी आप जा सकते हो. सो प्लीज टेक इट दिस वे. मैं सभी गर्ल्स से यही क्वेश्चन पूछता हूँ जब वो आती हैं, सर बॉयज की तो सर 80 वैकेंसीज हैं और गर्ल्स की सिर्फ 11 वैकेंसीज निकली हैं इस साल के अंदर, पूरा तो हम कैसे जाएंगे? तो भाई 11 गर्ल्स तो जा रही है ना. अगर आप अपने आप को पहले ही 12वीं से शुरू कर रहे हो तो दैट मीन्स यू आर ऑलरेडी ऑन द रॉन्ग फुट. So you are already starting on a level where you are pitching yourself lesser than 11 girls. Please understand this. सबसे जरूरी चीज तो ये है कि आप अपने आप को उस लेवल पे पिच करो कि अगर एक भी वैकेंसी है तो उसमें नाम शुभांगी का आना चाहिए. Shubhangi, please keep yourself on mute. That is very important. Once you have decided that, then is you have to work for it. घर में बैठे बैठे शुभांगी नंबर 1 नहीं बन जाएगी.
एनसीसी सी सर्टिफिकेट हमें पता है कि नॉर्मल रिटन एग्जाम करने से हमारे को जो एएनओ, आपके कॉलेज के अंदर एक एएनओ होगा जो एनसीसी ऑफिसर की भूमिका निभा रहे होंगे, वो आपको सर्टिफिकेट दे देते हैं। उनको पता है भी शुभांगी ने कैंप लगा लिया, फलाना कर लिया, दे दो इसको। बी ग्रेडिंग सबको मिलती है। बी ग्रेडिंग लेना कोई मुश्किल नहीं है। मैंने भी एनसीसी बहुत की है, बथेरे बच्चों को ट्रेन भी किया है। एनसीसी का बी सर्टिफिकेट लेके जो बच्चा निकला है, इसका मतलब उसने कोई हाथ पैर ज्यादा हिलाए नहीं है। नॉर्मल चलता फिरता बच्चा ये बी ग्रेड लेके निकलता है। जो बच्चा फुली इंटरेस्टेड है, पहली बात तो वो बी ग्रेड में आएगा ही नहीं। दैट चाइल्ड हु इज एक्चुअली इंटरेस्टेड इन डूइंग एनसीसी फॉर अ पर्पस, वो बच्चा एक पर्पस के लिए एनसीसी में आया है, वो उसमें मिनिमम अल्फा ग्रेडिंग लेगा ही लेगा। जब आपकी अल्फा ग्रेडिंग आएगी तो इट इज बट नेचुरल 50 to 60% चांसेस आर के आप आरडी कैंप भी अटेंड करोगे। जब आपने आरडी कैंप अटेंड कर लिया, ऑब्वियसली यू हैव गॉट एक्सपोज टू बेटर थिंग्स इन लाइफ। जब आप बेटर थिंग्स एक्सपोज हो जाओगे, डिबेट डिक्लेमेशंस ऑलरेडी एनसीसी के अंदर अटेंड कर लोगे, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल हायर लेवल पे होगा। यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट इट इन अ बेटर मैनर। प्लस अब जो बच्चा एनसीसी सी सर्टिफिकेट आर्म फोर्सेस में जाने के लिए ऑप्शन क्रिएट कर रहा है, वो बच्चा उसके लिए काम भी तो करेगा। ये थोड़ी है कि एनसीसी का सी सर्टिफिकेट हमारे पास आने के बाद हम काम शुरू करेंगे। वो तो सबसे बड़ी बेवकूफी है कि एक बार सी सर्टिफिकेट मिल गया भाई, अब एक आसान तरीका है, चल एसएसबी घूम के आते हैं। एसएसबी घूम के आना और एसएसबी में परफॉर्म करना दो अलग चीजें हैं। क्योंकि सरकार आने जाने का खर्चा दे रही है, वहां पे आपको अफसर राशन दे रही है, मजा तो सबको आता है। लेकिन जो बच्चा वहां पे रिकमेंड होने के लिए जाता है, द चाइल्ड पुट्स इन हार्ड वर्क बिफोर गोइंग। आप अपने आप को उस लेवल पे पिच करते हो कि अगर एक भी वैकेंसी है, आई शुड बी द वन हु शुड बी कंसिडर्ड। एंड बिलीव मी, जितनी भी लड़कियां, अगर आपके आसपास कोई भी ऐसी लड़की है जो एनसीसी बेस पे एंटर हुई है, मेरे से लिखवा के ले लो, उस लड़की ने कोई ना कोई रिटन एग्जाम भी पक्का क्लियर किया हो। सो प्लीज डोंट ट्रीट एनसीसी एज एन ईजियर ऑप्शन ऑफ गोइंग इन। यस, इट इज वन ऑफ द ऑप्शंस, बट यू मस्ट गिव योर सीडीएस एग्जाम। सीडीएस का पेपर, एफकैट का पेपर, आईनेट का पेपर पक्का देना है, सो दैट वी आर एबल टू प्रूव टू आवरसेल्व्स। और किसी के लिए तो अपने लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए कि हाँ, नेशनल लेवल पे आई हैव प्रूव्ड माई सेल्फ, आई हैव गॉट रिकमेंडेड एंड आई हैव गॉट अ कॉल फ्रॉम एसएसबी नॉट ओनली ऑन एनसीसी सी सर्टिफिकेट बट ऑन द बेसिस ऑफ माई रिटन एग्जाम। सो बेटा, ये दिमाग में से बिल्कुल निकाल दो कि एनसीसी के जो आरडी कैंप वाले हैं या अल्फा ग्रेडिंग वाले वो ही जाते हैं। आप कोई भी एनसीसी का बच्चा जो फाइनली ओटीए लैंड अप होता है, उससे बात करो, उसकी प्रोफाइल चेक करो, वो बच्चे ने लाइफ के अंदर फोकस्ड अप्रोच से काम किया होगा, रिटन एज वेल एज फिजिकल। एंड आई एम टेस्टिमनी टू दैट। जितने भी मेरे कैंडिडेट्स एनसीसी में थ्रू जाते हैं, दे आर एबल टू क्रैक अदर एग्जाम्स आल्सो। सो डोंट वरी, इट इज अ फोकस्ड अप्रोच। अगर आप एनसीसी के थ्रू भी जाना चाहते हो, अप्रोच फोकस्ड होनी चाहिए। ये नहीं कि जब फाइनली सी सर्टिफिकेट जेब में आ गया, अब आप सोचो सर 10-15 दिन कुछ करवा दो, कुछ एसएसबी में हो जाए, तो फिर कुछ ही होगा। वहां पे जाके खा पी के वापस आ जाओगे आप। यू विल नेवर गेट रिकमेंडेड बिकॉज इट इज अ वे ऑफ लाइफ। यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। Yes, sir. थैंक यू। Any other student who want to ask question? This is a golden opportunity for all of you. Sir is there to answer your questions. So you may ask whatever doubts are there in your mind. अगर आप पूछना नहीं चाहते तो आप लिख भी सकते हैं चैट बॉक्स में। यस अनुष्ठा। जय हिंद सर। जय हिंद बेटा। सर मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे जो ये सोल्जर की वैकेंसी निकलती है गर्ल्स के लिए, सर इसमें होता है कि मेरिट के बिहाफ पे ज्वाइन होता है, तो जैसे 85 से अबव होता है उसको ले लेते हैं। देन सर व्हाट अबाउट अदर गर्ल्स? ओके बेटा, अभी आपने सोल्जर वैकेंसी की बात की है। आई हैव ओनली स्पोकन अबाउट ऑफिसर लेवल एंट्रीज, नो इश्यूज। सो जो सोल्जर लेवल एंट्री है, फर्स्टली इट स्टार्ट्स आफ्टर क्लास 10th। यस सर। तो आप बात कर रहे होंगे जो कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में अभी लड़कियों की भर्ती पिछले 3 साल से खुली है। यस सर। तो मिलिट्री पुलिस में जो है, द टारगेट ऑफ द गवर्नमेंट इज नेक्स्ट 10 years दे आर गोइंग टू रिक्रूट 1100 गर्ल्स हु विल बी सर्विंग एज सिपाही। वो नायक की रैंक के अंदर भर्ती होती है। 56 वीक्स की ट्रेनिंग है जो बैंगलोर के अंदर चलती है, और ये 10th लेवल एंट्री है। सो सिंस इट इज अ 10th लेवल एंट्री, प्लीज अंडरस्टैंड इट इज नॉट एन ऑफिसर लेवल एंट्री। आप एक सिपाही भर्ती हो रहे हो गर्ल्स के लिए, यस इट इज एन अपॉर्चुनिटी, लेकिन आपके अंदर
ये भी बिल्कुल क्लियर है जो मैंने अभी बात की, फोकस होना बहुत जरूरी है। जो लड़की अगर सिपाही भर्ती होना चाहती है फौज के अंदर, और ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास आफ्टर 10th ओनली इन कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस CMP, तो कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस आपको ये अपॉर्चुनिटी देती है। अगर आप सिपाही भर्ती होना चाहते हो 10th के मार्क्स के बेस पे, लास्ट ईयर कट ऑफ वाज 88 नॉट 85, लास्ट ईयर 88% से नीचे जो भी लड़की थी उसको कॉल नहीं आई। इस साल अगस्त में फिर आपके लिए फॉर्म भरे जाएंगे, जब आप 10th का रिजल्ट आ जाएगा इमीडिएटली नोटिफिकेशन जारी होगा, उसके बेस पे आप भरेंगे फॉर्म। सो ऑल दोज गर्ल्स हु आर अबव द कट ऑफ, मान के चलिए अगर आप 88-89% आपके मार्क्स नहीं है 10th में, तो आप इसका कट ऑफ मीट नहीं करोगे, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया सिर्फ 100 लड़कियां जाएंगी हर साल। तो अगर आप फोकस्ड अप्रोच से 10वीं में 90% नंबर लेना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो जिस लड़की ने नंबर ले लिए उसको हम फिजिकली तैयार करवाते हैं। फिजिकल तैयारी के लिए मिनिमम 6 महीने मैं मान के चलता हूं। जो लड़की ने अभी 10th का एग्जाम दे दिया वो लड़की मेरे पास आ जाती है, तो देन वी ग्रेजुअली प्रिपेयर हर फॉर द फिजिकल फिटनेस एग्जाम विच इज गोइंग टू बी हेल्ड, जो हमारे रीजन का है वो अंबाला में होता है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, J&K ऑल गर्ल्स आर फिजिकली टेस्टेड एट अंबाला। सो अंबाला रिक्रूटमेंट ऑफिस के अंदर आपको कॉल अप लेटर आता है जब आप अप्लाई करते हो। अगर आप कट ऑफ से ऊपर आपके मार्क्स हैं 10th में, यू विल गेट अ कॉल लेटर। तो वो कॉल लेटर के बेस पे आप अंबाला में रिपोर्ट करेंगे, वहां पे आपका फिजिकल टेस्ट होगा, एक रिटन टेस्ट भी होता है जिसकी तैयारी भी हम साथ के साथ करवाते हैं। आफ्टर दैट इफ यू क्वालिफाई इन बोथ दिस, देन देयर इज एन नेशनल मेरिट विच इज मेड। वो तकरीबन 500 लड़कियों की मेरिट बनती है ऑल ओवर इंडिया, उसमें से टॉप 100 बेंगलोर जाती हैं ट्रेनिंग के लिए। सो ये जो है ये सोल्जर लेवल एंट्री है, इट इज नॉट एन ऑफिसर लेवल एंट्री एंड इट इज एप्लीकेबल टू गर्ल्स आफ्टर 10th। आई होप आई हैव क्लैरिफाइड। यस सर। किसी और बच्चे का कोई सवाल हो तो प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करें और सर से पूछ लें। Sir, ये only 10th base. हाँ जी नवनीत, गो अहेड। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। Sir, ये only 10th base होती है, not 12th base. बेटा देखो, एज है, एज इज अ मेजर क्राइटेरिया। सो एट टाइम्स ऐसा होता है कि बच्चे ने 10th में मार्क्स ले लिए लेकिन अभी +2 कर रहा है बच्चा, तो आप मान के चलो आपके 2 अटेम्प्ट मिस हो गए, लेकिन अगर आप एज कट ऑफ मीट कर रहे हो इस साल, सो आप उस बेस पे अप्लाई कर सकते हो। सो जब नोटिफिकेशन जारी होगा, यू मस्ट कीप योर आइज एंड ईयर्स ओपन। अखबार में भी आता है, नेट पे भी आता है, और जो मैंने आपको साइट का एड्रेस बताया उसमें भी आएगा। तो आप चेक रखिए, जब नोटिफिकेशन जारी होगा उसमें एज लिमिट दी होगी, ये ऑल गर्ल्स बोर्न बिटवीन सो एंड सो डेट टू सो एंड सो डेट। तो अगर आप एज क्राइटेरिया मीट कर रहे हो और आप नॉट नेसेसरीली इसी साल आपने 10th किया है, तो यू स्टिल मे बी एलिजिबल टू अप्लाई। लेकिन फिजिकली आपको तैयारी करना बहुत जरूरी है। अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए, मैं सेपरेटली आपको नोटिफिकेशन भेज सकता हूँ, आप आरती मैम से बात कर लीजिएगा। मैं जो लास्ट नोटिफिकेशन पिछले साल की गर्ल्स की है वो आपको भिजवा दूंगा, उसमें आप चेक कर लीजिए। टेंटेटिव मान के चलिए कि उसमें 1 साल प्लस कर दीजिए, तो अगर आप एज कट ऑफ मीट कर रहे हैं तो देन यू कैन अप्लाई दिस ईयर। Okay, thank you so much, sir. Sir, some students want to know about CAPF exam. So Okay. can you throw some light on that? Yeah, CAPF is different from armed forces. So what we need to understand is it includes Central Armed Paramilitary Forces, और again ये एक ऑफिसर लेवल एंट्री का एग्जाम होता है जो नेशनल लेवल पे होता है। सो CAPF एग्जाम के लिए द मिनिमम रिक्वायरमेंट इज ग्रेजुएशन। आफ्टर ग्रेजुएशन यू आर सपोज टू सिट थ्रू द UPSC CAPF एग्जाम। तो इसमें अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, कुछ टेक्निकल के लिए होते हैं, कुछ फ्लाइंग के लिए भी जाते हैं। सो इट डिपेंड्स व्हाट यू आर एलिजिबल फॉर। सो अगेन CAPF नोटिफिकेशन इज अवेलेबल ऑन द UPSC साइट। उसमें क्या है कि CAPF के अंदर CRPF, BSF, सीमा सुरक्षा बल एंड CISF एंड ITBP, ये 5 ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं। तो ये पांचों ऑर्गेनाइजेशंस की ऑफिसर इनटेक CAPF एग्जाम के थ्रू होती है। इसमें और आर्म्ड फोर्सेस में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि CAPF एग्जाम में कोई SSB इंटरव्यू नहीं है। यू हैव टू क्वालिफाई इन द रिटन एग्जाम विच इज कंडक्टेड बाय UPSC, और उसके बाद एक पैनल इंटरव्यू होता है जो कि हर एक अगर आप CISF में जा रहे हैं तो CISF के ऑफिसर्स एक पैनल बनाते हैं, एक बोर्ड बैठता है, वो आपको स्क्रीन करेंगे। उसके अंदर नॉर्मल इंटरव्यू प्रोसेस है
You are screened through that, about half an hour or 40 minutes of interaction, और उसके बाद overall merit बनती है. So the basic qualification, firstly we must understand कि CAPF का मतलब है Central Armed Paramilitary Forces, और 5 organizations की induction officer level पे इस exam के through होती है. Written exam plus thereafter physical, आपका medical होता है, and third part is your interview which is through a panel interview. SSB interview नहीं है इसमें. So this is what is the general guideline. In case anybody is specifically interested कि नहीं सर मेरे को flying में जाना है BSF में, या मेरे को technical side जाना है, communication side जाना है, तो you can interact with me separately and I can let you know the details कि क्या क्या चीजें आपको required है and how you need to prepare for it. I hope I have answered the question. Yes, sir. Sir, some students want to know about NDA exam for girls. Okay, NDA unfortunately is not open for girls. So that's exactly what I tried to bring out. कि जो +2 लेवल पे जो इंडक्शन है वो अभी सिर्फ बॉयज के लिए ही अवेलेबल है, बट गर्ल्स के लिए ओनली फील्ड ओपन इज नर्सिंग. सो गर्ल्स अगर +2 के बाद इंटरेस्टेड हैं, फर्स्टली यू मस्ट अंडरस्टैंड कि आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट्स होने चाहिए. सेकेंडली यू नीड टू स्कोर मोर देन 85% इन एग्रीगेट PCB. And thirdly, you have to clear MNS written examination, which is conducted once every year in the month of March. और उसके बाद एक इंटरव्यू होती है, and only nursing is the military nursing services is the field for which girls are eligible after +2 in officer grade. So officer grade इसके अलावा भी unfortunately NDA is not meant for girls. NDA induction and Naval Academy induction after +2 is only for boys. Thank you, sir. Is there any other question? Commerce background के students के लिए some students are asking, sir. हाँ जी. कि कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए कौन सी डिफेंस में कौन सी लाइन बेस्ट सुटेबल है? देखिए, कॉमर्स स्टूडेंट्स विल बी एलिजिबल फॉर जनरल कैटेगरी ऑफिसर्स. नाउ जनरल कैटेगरी जो मैंने अभी लिस्ट किया था उसमें आप किसी भी सर्विस में ऑफिसर जा सकते हैं. आर्मी सर्विस कोर ASC, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर AOC, और उसके बाद आप जो कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं वो आर्मी एयर डिफेंस में भी जा सकते हैं. सो इट डिपेंड्स which all are the fields available, क्योंकि आपकी जो इंडक्शन होगी पहली बात तो that will be based on short service intake of CDS. तो आपको CDS का एग्जाम देना पड़ेगा. You will not get a direct chance. CDS का एग्जाम जब आप क्लियर करेंगे you will have to undergo the SSB procedure. SSB करने के बाद अगर आप रिकमेंड होते हैं you go to OTA चेन्नई. OTA चेन्नई से पास आउट होने से पहले 11 महीने की ट्रेनिंग है वहां पे. Before that vacancies are released by DG recruiting. उसमें कितनी वैकेंसीज AOC की आती हैं, ASC की आती हैं, या बाकी जगह, क्योंकि टेक्निकल आर्म्स के लिए कॉमर्स वाले एलिजिबल नहीं रहेंगे. टेक्निकल आर्म्स मीन कोर ऑफ सिग्नल्स, कोर ऑफ इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, इसमें सिर्फ साइंस ग्रेजुएट्स ही जा पाएंगे. बट ऑल अदर सर्विसेज लाइक AOC, ASC एटसेट्रा, इसमें बच्चे डिपेंडिंग ऑन द वैकेंसीज व्हिच आर रिलीज्ड यू विल बी इंडक्टेड आफ्टर OTA ट्रेनिंग. तो कॉमर्स वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं इसमें, नो इश्यूज. Sir, Good morning, sir. थोड़ा Sir, I have a question I wanted to ask. हाँ जी दीक्षिता बोलिए. Sir, मैंने अभी तक 2 बार SCAT का एग्जाम दिया, बट एक बार Yeah, दीक्षिता प्लीज रिपीट. मैंने अब तक 2 बार ही एग्जाम दिया है SCAT का, but I haven't cleared the cutoff even once. So Okay. can you tell how can I boost my that preparation level? Very interesting question. You are asking कि okay, मैंने 2 बार स्विमिंग पूल में छलांग लगाई लेकिन मैं 5 मीटर से ज्यादा स्विम नहीं कर पा रही. आप बताइए मैं कैसे ज्यादा स्विम करूं. सो बेटा, फर्स्टली यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट प्रॉपर मेंटरिंग इज रिक्वायर्ड फॉर एवरीथिंग. ओके, I sitting here without undergoing a proper analysis of how you have appeared, जब तक मुझे ये पता नहीं चलेगा आपने कहाँ पे आपके अंदर खामियां हैं, किन किन चीजों पे हमें काम करना है, I will not be able to comment. That's why I said मेरा जो प्रोसीजर है, it starts with a counseling session. I sit with the child and find out कि आपके अंदर मुझे काम कहाँ करना है. So if I don't understand, suppose आप कौन से एग्जाम में बैठे हो, FCAT में बैठे हो, CDS में या INET में, किस में बैठे हो आप? Sir, FCAT में. Okay, so FCAT में अगर आप बैठे हो, firstly you are interested in Air Force. You have not sat for CDS exam. तो FCAT में अगर आप 2 बार बैठे हो, so after every exam, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज आप बैठ के
अपना अंदाजा लगाइए कि मेरे इस एग्जाम में इतने नंबर आएंगे। हर बच्चा, नॉर्मल बच्चा जो होता है, वो हर एग्जाम के बाद अपना रफ स्कोर लगाता है कि इतने नंबर आ जाएंगे मेरे। एम आई क्लियर? तो क्या आपने वो अंदाजा लगाया है? Yes, sir. ग्रेट। अब वो अंदाजा जब रिजल्ट आता है, कई बार उससे 50 नंबर हमारे कम आते हैं, कई बार 100 नंबर कम आते हैं, कई बार हमें पता ही नहीं होता कि क्या अंदाजा लगाया और नंबर कहीं और आते हैं। तो किसी भी स्टेट में हाउ क्लोजली यू आर रिलेटेड टू द रियलिटी, दैट विल टेल यू पहली बात कि आपकी इंट्रोस्पेक्शन क्लियर है कि नहीं है। बच्चे के अंदर अगर इंट्रोस्पेक्शन की कैपेबिलिटी ही नहीं है तो आप, इसका मतलब आप खुद अंदाजा लगाने में सक्षम नहीं हो, आप कहीं ना कहीं मार खा रहे हो। अगर आप करेक्ट चीज पे होम ऑन नहीं करोगे कि मेरी गलती कहाँ हुई है, तो इंप्रूव कैसे करोगे आप? तो प्रोबेबली आपके साथ यही हो रहा है कि आप एग्जाम दे रहे हो लेकिन आप होम ऑन नहीं कर पा रहे कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। अगर ये होता तो आपका पहली बात तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा कि ओके, मेरे को इस टाइप के क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही है। आई स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दोज क्वेश्चंस एंड देन आई मेक श्योर दैट आई इंप्रूव माय ओवरऑल। अगर नेगेटिव मार्किंग है किसी एग्जाम में तो मैं तुक्केबाजी से आई शुड रिफ्रेन, आई शुड नॉट डू एनी गेस वर्क। प्लीज बिलीव मी, ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम्स में ज्यादातर बच्चे इन्हीं चीजों में मार खाते हैं। अगर 100 क्वेश्चंस हैं, पहली बात तो तैयारी हमारी डामाडोली रहती है कि ठीक है यार, टाइम मिलेगा पढ़ लेंगे, टाइम मिलेगा पढ़ लेंगे, फोकस्ड अप्रोच से तैयारी नहीं करते। दूसरी चीज, जब एग्जाम में बैठते हैं तो 100 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन हमें डायरेक्ट आते होते हैं। हम वो 20 क्वेश्चन फटाफट अटेम्प्ट कर देते हैं क्योंकि आजकल जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर ऑब्जेक्टिव, एमसीक्यूज होते हैं, तो आप 20 क्वेश्चन फटाफट मार्क कर देते हो। अब आपके पास 1.5 घंटा पड़ा है। अब 1.5 घंटे के अंदर आता तो आपको 80 क्वेश्चन में से कुछ नहीं है। अब नॉर्मल बच्चा क्या करता है, चल यार 20 क्वेश्चन जिसमें 2 चॉइसेस के बारे में मेरे को पता है, उसमें तुक्का लगाने की कोशिश करता है बच्चा। अब वो 20 क्वेश्चन में से सपोज अनदर 20 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर दिया, टोटल 40 का अटेम्प्ट कर दिया आपने। 20 जो आपके ठीक थे और 20 जिसमें आपने तुक्का लगाया है, ये तुक्के वाले क्वेश्चन में से अगर मैं मान लूं भगवान का ज्यादा ही आपके सिर पे आशीर्वाद है तो 20 में से 10 ठीक हो गए आपके, लेकिन जो 10 गलत हुए वो आपको ड्रैग कर गए ना नीचे। तो जो जितने मार्क्स आप 20 करेक्ट आंसर से ले सकते थे, अब आपके मार्क्स उससे भी कम आ गए। सो हम ये सोच नहीं पाते हैं फर्स्टली कि नेगेटिव मार्किंग वाले एग्जाम्स में वी शुड नॉट ओवर अटेम्प्ट एनीथिंग विच वी आर नॉट श्योर ऑफ। एंड आई हैव मेंटर्ड किड्स, मैंने बच्चों को जो मेरे पास ट्रेनिंग लेते हैं, दे आर वेरी क्लियर ऑन दिस इशू कि नेगेटिव मार्किंग वाले क्वेश्चन पेपर में नॉट इवन अ सिंगल आंसर इज टू बी रिटन वेयर वी आर अनश्योर ऑफ, क्योंकि वो एक जवाब मुझे अपने एक्चुअल लेवल से नीचे ले जा सकता है अगर वो गलत हो गया। और बिलीव मी, नेशनल लेवल पे मेरिट पॉइंट 001 मार्क्स से भी इफेक्ट होती है। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड, एफकैट इज अ नेशनल लेवल एग्जाम। दुनिया भर के बच्चे इसमें आपके हर सब्जेक्ट से, हर फील्ड से आके अपीयर होंगे, लेकिन इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग, तो आप उस एरिया में काम नहीं कर पाओगे और कभी भी इंप्रूवमेंट नहीं ला पाओगे। सो आई सजेस्ट यू टू अंडरगो अ काउंसलिंग सेशन wherein actually where you are lacking, that point is find out and thereafter you can work on it. आप उस पे ढंग से काम करोगे तो there is no way, just no way you will not be able to do well. I hope I have answered your question, Dikshita. Yes, sir. Thank you, sir. सर प्लीज थोड़ा सा कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए भी बताइए। बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीसीए, बीएससी आईटी, ये स्टूडेंट्स कहाँ पे फोकस कर सकते हैं? These students, हाँ, these students, इनके लिए तो sky is the limit. Everything is open for them. So they must appear for CDSE exam, which is for the induction as officers into the Indian Army. फिर FCAT exam है, which is for induction as officers into the Indian Air Force. Then there is INET exam, which is for induction as officers into the Indian Navy. और उसके बाद CAPF एग्जाम है फॉर पैरामिलिट्री फोर्सेस, विच आप जो अभी आपने मेरे से पूछा था। सो जो साइंस ग्रेजुएट बच्चे हैं उनके लिए तो सारी स्ट्रीम्स ओपन है, वो जनरल कैटेगरी में भी जा सकते हैं, टेक्निकल स्ट्रीम्स में भी जा सकते हैं। सो द ओनली थिंग इज दे नीड टू हैव अ वेरी क्लियर कट अप्रोच कि हमने कौन सा एग्जाम देना है, फिर उसकी तैयारी किस तरह से करनी है, बिकॉज हर एक एग्जाम में हल्का हल्का मॉडिफिकेशन होता है। So the moment you understand that modification, the moment you understand कि इसका जो करिकुलम है कहाँ से उठा रहे हैं वो, तो you will be able to do well.
I'll just take a small example कि कई बार बच्चे ऐसा करते हैं कि भाई मैथ्स में सपोज मेरे को इंटीग्रेशन इज नॉट माय कप ऑफ टी, मेरे को लगता है इंटीग्रेशन में मैं हमेशा मार खाता हूँ, तो मैं इंटीग्रेशन पे फोकस करता रहता हूँ, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन करता रहता हूँ कि मैं इसके इसमें ठीक कर लूँ। रिजल्ट क्या है कि इंटीग्रेशन के तो फाइनली 100 में से 7 या 8 क्वेश्चन आने हैं। इन 7 या 8 क्वेश्चंस को मैं अपने टाइम का 80% हिस्सा दे रहा हूं। Whereas had I invested in remaining 92 क्वेश्चंस तो मैं एटलीस्ट अपने 90 क्वेश्चन तो ठीक कर लेता। सो वी नीड टू हैव अ वेरी फोकस्ड अप्रोच। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इट इज नॉट अबाउट हार्ड वर्क अलोन, सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं चलता है इसमें। यू हैव टू बी यूटिलाइजिंग योर ग्रे सेल्स, दिमाग से यूज करके जो चीज आपको ज्यादा आउटपुट दे रही है उसमें कंसंट्रेट करने की जरूरत है। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, चाहे CAPF, INET, AFCAT, CDS, इसमें दिमागी तौर पे यू हैव टू बी वेरी शार्प कि ये चीज मेरे को प्रॉब्लम दे रही है, छोड़ दो इंटीग्रेशन यार। अभी मुझे ये है कि 8 क्वेश्चन मेरे जाएंगे ना, जाए बाढ़ में, मेरे को कोई फर्क नहीं। 90 क्वेश्चन अगर मेरे ठीक हो गए, आई विल बी टॉपिंग द मेरिट। So we need to understand the approach has to be very clear. So for computer science students, everything, they are eligible for everything in the armed forces, provided you are able to crack the exam and clear the SSB. सर एक लास्ट क्वेश्चन और, स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि क्या आप UPSC एग्जाम के लिए भी गाइडेंस देते हैं? तो क्या आपको UPSC, yes. Now it is not a classroom coaching. As I told you, written exam is not a classroom coaching. I feel very strongly कि बच्चे ने हार्ड वर्क करना है। उस हार्ड वर्क करने का जो तरीका है, as per your capability, that is what I am going to tell you. So after the counseling session or with the child or with the aspirant, I come to know okay, this is your strong point, this is your weak point. Please address this like this. पिछले 10 साल की कट ऑफ यहाँ पे जा रही है इस एग्जाम में, तो आपको उस कट ऑफ से ऊपर आने के लिए किस जगह पे मेहनत की जरूरत है, दैट वी कैन सिट एंड डिसाइड। Obviously, I can conduct mock tests, I can conduct mock interviews, I can tell you which all fields to work on. लेकिन that can only happen individually after a counseling session. So you need to be very clear where you need to work on. जब तक हमें पता नहीं चलेगा किस एरिया में काम करना है, तो हम अंधेरे में तीर चला रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। So I hope sir has cleared almost all the doubts of the students. If still there are some questions or doubts, I will share number of Colonel Chanpreet Singh ji with all of you. You can contact me later on also. So with this we reach to the conclusion of today's event. Now I would request Madam Rasmeet Kaur to please extend vote of thanks for today's event. Over to you, Rasmeet. Yes, ma'am. Ma'am, am I audible, ma'am? Yes, Rasmeet, you are audible. Good afternoon to all. I am Rasmeet Kaur, and it's my honor and privilege to extend vote of thanks for this event. Good afternoon, bache. First and foremost, I would like to say thanks to our worthy director, ma'am, and honorable principal, ma'am, for motivating us and guiding us for organizing this event. Thank you, sir, for sharing your valuable thoughts and information with us. We are grateful for the time and efforts you took to share your experience with us. The session is really enriching for our students, and I'm sure all of them will understood the options for girls in Indian Armed Forces. Once again, thank you, sir, for providing insight on career options in Indian Defence Services. Thank you, sir. Thank you so much. Thanks a lot. Grateful. So with this, we conclude today's event. I'm once again thankful to you, Lieutenant Colonel Chanpreet Singh ji, for sparing your precious time and sharing your insight on all the options which are available for our students. And I hope our students will be contacting you and they will be benefiting from your experience. No issues, ma'am. Thank you. Thanks a lot. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Students, you can now leave the meeting.